ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ PSSB ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ GK ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GK ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਆਪਣਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 116 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ 115 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਬੈਚ ਕੋਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ PDF ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਹੋਮ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੈ, ਚੈਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਬੈਚ ਤੇ ਕਲਿੱਕ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਬੈਚਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਚਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚ ਕੋਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੈਚ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? YouTube PDFs ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਡੇਲੀ PDFs ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖੈਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲਰ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਈ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲਰ ਟੂ ਟੇਕ 150 ODI ਵਿਕਟਸ। ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ 150 ਵਿਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਜਿਹਨੇ 150 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਭਾਈ? ਤੇ ਇਹ 3rd ਇੰਡੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੀਸਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ 80 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। 80 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ 150 ਵਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਵਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ 97 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਭਾਈ 103 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ 80 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੈ, 150 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। 97 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ, 103, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਈਏ, 117ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਵਾਰਡਡ ਵਿਦ ICC ਵੂਮੈਨਸ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਫॉर ਜੂਨ 2022। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੂਮੈਨ ਪਲੇਅਰ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਵੂਮੈਨ ਪਲੇਅਰ ਜੂਨ ਮੰਥ ਦਾ। ਇਹ ਜੂਨ ਮੰਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ICC ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ICC ਦੀ, ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਹੈ। ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਈਅਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਈਅਰ? 1909। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਤਾਂ 15 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ICC ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੁਬਈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੁਬਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਫॉर ਜੂਨ 2022 ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰਜ਼ਾਨਾ ਕਾਪੀ, ਰਾਈਟ, ਮਰਜ਼ਾਨਾ ਕਾਪੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੂਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਵੂਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨ, ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਥ ਆਫ ਦਾ ਜੂਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੌਨੀ ਬਾਰਿਸਟੋ। ਜੌਨੀ ਬਾਰਿਸਟੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਨੀ ਬਾਰਿਸਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰਾਈਟ। ਜੌਨੀ ਬਾਰਿਸਟੋ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਮੈਨਸ ਪਲੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੌਨੀ ਬਾਰਿਸਟੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ 2022, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਨੇ ਕੱਪ ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ICC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ 1909, 15 ਜੂਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ ਦੁਬਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸੋ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕੋਈ ਫਨੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, BK ਸੈਨਗਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ BK ਸੈਨਗਲ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ BK ਸੈਨਗਲ ਯਾਨੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੇ ਸੈਨਗਲ, ਰਾਈਟ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਸੋ B ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਾਲਾ ਡੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 115 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਲਾ ਡੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 115 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਾਲਾ ਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, 12 ਜੁਲਾਈ, ਰਾਈਟ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਾਲਾ ਡੇ 12 ਜੁਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਸਥਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਪਲੇਸਡ। ਸੋ ਆਹ ਹਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਪਲੇਸਡ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2014, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗॉट 에ਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰॉम ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਟੇਕ ਆਫ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੈਟ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਆ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਸਤਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ 에ਅਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਾ 에ਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾ 에ਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਇਹਦਾ 2021 ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁੰਬਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜੁਨਜੁਨਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੁਨਜੁਨਵਾਲਾ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ਾ 에ਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, 에ਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰॉम ਦਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 2021 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ,
मुंबई। राइट हो गया। अगले क्वेश्चन से आप जिक्र आइए तो हु विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस। राइट सो किहड़ा भाई वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल जिहड़ा हैगा पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस। सो बेसिकली तो रेलवे नैटवर्क को मजबूत करने वास्ते अलायंस किया गया कि रेलवे नैटवर्क होर किस किस तरीके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके रिफॉर्म लिया जा सकती है। राइट सो पहली मार्केट भी पूछी जा सकती है कि स्टार अलायंस को लैके इंटरनेशनल पहली मार्केट किहड़ी कंट्री दे विच बनी है। सो उही आंसर आ जाऊगा किहड़ी कंट्री दे विच बनी है। पहले तो कंट्री याद रख लो, कंट्री हैगा जर्मनी, कंट्री हैगा जर्मनी एंड जर्मनी दी ही कंपनी इंटरनेशनल जिन्हें पार्टनरशिप की है स्टार अलायंस, उसका नाम की है याद रख लो। ठीक है। सो इनू प्रोनाउंसिएट करते हैं डैश बाहन, हालांकि ये मैं प्रोनाउंस किया सो प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, बस तुसी आंसर ला के आना पेपर दे। राइट सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाची वाहन। राइट सो डाची डाची कह के याद कर लो, पेपर दे आ गया तो आंसर ला दो। तो यदा इफ जर्मनी ही, अच्छा जर्मनी पहली मार्केट में क्यों कही है, क्योंकि जो हैडकुआटर जर्मनी ही है, जोड़ा हैडकुआटर वो जर्मनी ही है। ठीक है। शॉर्ट के कहा जाता DB, शॉर्ट के कहा जाता DB। राइट सो ये कई बार ये भी पूछा है भी कादे वास्ते रेल नैटवर्क जो है उसनों मजबूत करने वास्ते है, उसनों होर वधिया तरीके दे नाल यानी कि चलाउण वास्ते। राइट सो स्टार अलायंस दे नाल पहला फस्ट वर्ल्ड का इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप हुई है, पार्टनर कौन बनेगा DB, डाची वाहन। राइट सो याद रखियो भाई, इंपॉर्टेंट है। नैक्सट क्वेश्चन की आप जेकर गल करिए तो हु हैज़ वन गोल्ड मैडल इन शूटिंग एट ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फैडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज जो कि साउथ कोरिया चांगवान दे विच होया। राइट सो गोल्ड मैडल किन्ने जित्या है, जल्दी जल्दी आंसर तुसीं दे सकते हो, जिवें कि संजीव राजपूत दे रखा है, ठीक है, अंजुम दे रखा है, दिव्यांश दे रखा है, अर्जुन बबूता। सो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के आंसर देना। सो वेरी गुड, जेकर तुहाडा आंसर राइट है अर्जुन बबूता। सो अर्जुन बबूता काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, गोल्ड मैडल जितेगा ISSF 2022 जो कि साउथ कोरिया दे विच होया है, 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है। सो ये भी याद रख सकते हो जेकर रखना चाहते तो अर्जुन बबूता। नैक्सट जेकर क्वेश्चन की गल करा तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन फाउंडेड इन अक्तूबर 1924। हिस्टरी तो क्वेश्चन आ गया थोड़ा जिहा स्टैटिक दे नाल रिलेटेड। सो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन कहते 1924 अक्तूबर के फाउंड हुई है, कित्थे हुई है, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, पंजाब। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के आंसर देने हैं। सो जेकर तुहानूं आंसर आउंदा गा, इस तो अलावा पहले मैं जानकारी दे देना, तुसीं कमेंट बॉक्स के आंसर तो दे ही दोगे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन को HSRA भी कहन लग गए सी, बाद इसका नाम चेंज हो गया सी। एंड वो कदों चेंज होया सी 1928 अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद, अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद यानी अंडर द लीडरशिप ऑफ आजाद इसका नाम चेंज हो गया सीगा HSRA यानी जिमें आप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन कहने उमें फिर इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट। राइट बाकी नाम सारा वही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन 1928 के विच अंडर द लीडरशिप ऑफ आजाद इसका नाम चेंज कर दिता गया सी। बट जिहड़ा नाम दिता किने सी, हु कोइंड द HSRA, भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने बेसिकली इसका नाम दिता सीगा, बट लीडरशिप किहदी सी आजाद। राइट सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1928 के विच। बट HRA जिहड़ी बनी है फाउंड हुई है वो 1924 के विच हुई है कानपुर दे विच। राइट एंड ये बड़ाई किन्ना ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन कानपुर दे विच, उन्हां दा नाम जरूर याद रखना गा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, योगेश चंद्र चैटर्जी, ये नाम तुसी जरूर याद रखना है। राइट है। तो तीसरा नाम जेकर तुसी दस सकते हो जल्दी जल्दी, जे दसता होया कमेंट दे विच वधिया गल है, सचिन। राइट है, सचिन सान्याल, सचिन सान्याल। सो आह तिन्ना ने जिहड़ी 1924 के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन बनाई है, 1928 के विच चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप के HSRA बनी है यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन। नाम किहने दिता सी, भगत सिंह ने, ये तुसी जरूर याद रखना है। नैक्सट आ गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेजिडेंट ऑफ द श्रीलंका आफ्टर गोटाबाए राजपक्षे। तुहानूं पता होगा कि श्रीलंका के बेसिकली हाल ही पिछे जे काफ़ी यानी कि भुचाल पै गया है ना, क्योंकि एक जो उन्होंने इकोनॉमी सी काफ़ी डाउन हो गई सी, प्रेजिडेंट नूं ओबियस गल ਉਹਦੇ अगेंस्ट हो गए सी लोग, तो तुहानूं पता प्रेजिडेंट जो हाउस ਉਹਦੇ ਤੇ भी हमला हो गया सी। सो एक्टिंग तो हुण नहीं रहे, हुण तो प्रेजिडेंट ही है पूरे।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਫਟਰ ਰਾਜਾ ਕੋਕਸਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 9th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾनिल विक्रमे, रानिल विक्रमे। सो ये नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th प्रेजिडेंट रानिल विक्रमे, राइट, 9th प्रेजिडेंट। इस तो बाद आ गया जी हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1772 ਤੋਂ 1785। टैक्नीकली क्वेश्चन ਇਹ गलत कह सकते हो तुसी, बट फिर भी तुसी आंसर दे सकते हो क्योंकि जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ईयर दिता होया ਤਾਂ फिर तुसी आंसर दे सकते हो। 1772 ਤੋਂ 1785 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਚਾਰਲਸ ਕਨਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1772 ਜੇਕਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਆਂਸਰ ਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1772 ਤੇ 1785 ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। 1773 ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1772 ਤੇ 1785 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਇਲ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੰਗੈਟਿਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਬੇਸਿਨ, ਉਥੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਲਟ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਲੂਵੀਅਲ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਇਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ, ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਇਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵਿਚ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਇਲ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਤਾਂ ਅਲੂਵੀਅਲ ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ ਅਲੂਵੀਅਲ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਚ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਇਲ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੂਵੀਅਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਾ ਕੋਵਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਕੋਵਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ, ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਕੋ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, यानी हनेरे का मतलब अंधेरा यानी आंध्रा, ठीक है। सो कोवाडा न्यूक्लीयर पार्क प्रोजैक्ट सैटअप कितने, आंध्रा प्रदेश। बस इन्ना तुसीं याद रखना। आई थिंक तुहाडा कमेंट बॉक्स के आंसर राइट आ गया होगा। 128 ते जेकर जाइए तो लेयर तो क्वेश्चन आया। मैं जदों भी क्वेश्चन तुहानूं करवाया मैं हमेशा कहा कि क्वेश्चन नूं पाउण दा तरीका की है, जो तुहाडे पेपर दे विच या सिलेबस दे विच इकनॉमिक इशू दिता होया, पोलीटिकल इशू दिता होया, इन्वायरमेंट इशू दिता होया, जां फिर फ्रीडम फाइटर की आप गल कर ली, तो तुसीं देखोगे जेकर पूरा एनालिसिस करके हर थां तो क्वेश्चन मैं पाया। वो कोशिश आ कि जेकर एग्जामिनर इस तरीके नाल क्वेश्चन पाऊगा तो किवें किवें क्वेश्चन वो बन सकते हैं। बस तां ही मैं कहना कि सीरीज़ उदों तक चलूगी, कंटिन्यू रहूगी, तो बहुत कुछ ये हो जाना, तो मैं क्वेश्चनों की गिणती वधाऊँगा, राइट। विच लेयर ऑफ द अर्थ द एटमोसफेयर कंटेन द ओजोन लेयर। जो पिछली बार भी कोई क्वेश्चन आया सीगा आई थिंक लेयर ते, उदों मैं दस्सिया सी नाल दी नाल ही क्लाउड्स की भी गल हुई सी एंड ओजोन लेयर की भी गल हुई सी, तो मैं उदों ही दस्सिया सीगा यूवी रेज तो बचाउंदी है, तो स्ट्रैटोस्फीयर ते अपनी ओजोन लेयर है, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, स्ट्रैटोस्फीयर ते, ठीक हो गया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप याद रखना है। क्लाउड्स आ जोड़े अपने ट्रोपोस्फीयर ते हो गए, आयनोस्फीयर ते अपनी रेडियो वेव है, राइट, स्ट्रैटोस्फीयर होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फीयर अपनी सब तो लोएस्ट लेयर आ गई।
इस तो बाद आ गया जी इन पार्लीमेंट द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ जनरल पॉलिसी इज द। सो पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ कोई भी जनरल पॉलिसी कोई भी किसी भी मैटर ਤੇ गवर्नमेंट यानी जो करती है ਉਹਦਾ चीफ स्पोक्समैन कौन है। ਹੁਣ चीफ स्पोक्समैन कौन होगा, ऑब्वियस गल है जो मेजोरिटी की सरकार का लीडर होगा, मेजोरिटी की सरकार का जो लीडर होगा वही तो चीफ स्पोक्समैन होगा गवर्नमेंट का, राइट है। कोई भी जनरल पॉलिसी, सो चीफ स्पोक्समैन कौन होगा भाई, स्पीकर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लीमेंट्री होगी या होम मिनिस्टर होगा। सो प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी है चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ द जनरल पॉलिसीज, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर, सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक तो सारा आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जाता होंगे। एक तो पेपरों के अक्सर घूमता रहता कि हु फाउंडेड द बचपन अंदोलन यानी बचपन बचाओ मूवमेंट। सो बचपन बचाओ अंदोलन भी कहा जाता या मूवमेंट भी कहा जाता, किहदे द्वारा फाउंड की गई, तो वह तो हुण क्वेश्चन तो तुहानूं पता लग ही रहा कि कैलाश सत्यार्थी। आप थोड़ा जिहा क्वेश्चन होर एडवांस दे विच करता कि इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता कि बचपन बचाओ अंदोलन चलिया कदों सी। सो 1992, 2004, 1980, 2002, इस तो वधिया स्टैटिक क्वेश्चन की हो सकता, राइट। पूछा जा सकता ना, तो 1980 दे विच 1980 दे विच कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने 2014 दे विच नोबल पीस प्राइज़ मिले। अज आप मलाला की भी गल कर ली तो इन्हों की भी गल कर ली। सो ये वार पेपरों के आते हैं, राइट। सो नोबल पीस प्राइज़ इन्होंने 2014 के मिले। 1980 के इन्होंने बचपन बचाओ जिहड़ा हैगा भाई मूवमेंट चलाई सी कैलाश सत्यार्थी ने। अच्छा, इस तो अलावा इदों बाद इन्होंने दो आश्रम भी बनाए सी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सीगा मुक्ति आश्रम, एक सीगा मुक्ति आश्रम, तो एक बनाया सी बाल आश्रम। सो ये भी पूछा जा सकता है, राइट है। मुक्ति आश्रम तो बाल आश्रम के कोई बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं। मुक्ति आश्रम एक थोड़े टाइम लिए जोड़े जिन्हें रहना होंदा सी उन्होंने मतलब उत्थे है ना, बट जिन्हें बाल आश्रम जोड़े बेसिकली ऑरफनस होंदे सी उन्होंने रखे लॉन्ग परपज़ तो जिन्होंने पालिया पोसा जाता सी बचपन तो लैके वड्डे होने तक। आह कोई मान लो बाहरों कोई मिल गया है ना उन्होंने थोड़े टाइम लिए ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ MSME ਡੇ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਔਨ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। MSME ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ यानी छोटी छोटी जी कंपनियां सरकार करोना के टाइम पर MSME ਨੂੰ ਇੰਨਾ ज़्यादा प्रमोट किया कि तुसीं अपने घरे अपने छोटे छोटे काम चलाओ ਜਿਹੜੇ कि ਚੱਲੇ भी है बहुत जाने दे, राइट। सो MSME डे ਹੁਣ बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ यानी वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ यानी ऑब्जर्व किया जाता। 27 जून 27 जुलाई 27 सितंबर 27 दसंबर जल्दी जल्दी आंसर तुसीं दस देना सी तो 27 जून ਇਹਦਾ राइट आंसर है, ठीक है। ਇਹਦਾ थीम जरूर याद रखियो। चलो ऐ करो कमेंट बॉक्स के जो यह वीडियो कंप्लीट होगी एंड ते कमेंट बॉक्स के थीम जरूर दसना, ठीक है। MSME डे का थीम की है क्योंकि काफ़ी बड़ा हूँ तो तुसीं ना लिखियो। अगले क्वेश्चन पर आप चलते हैं पर जाते जाते एंड ते फिर थीम जरूर दस के जाओ कि MSME का थीम की है। मैं वो जो हिंट देना हो तो थोड़ा जिहा हिंट दे देना जे तुहाडे याद है, नहीं तो तुसीं गूगल करके भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं, एट ए टाइम तो याद आ जाऊगा। RRMSD ये महेंद्र सिंह धोनी तो याद रखा होया बस याद रह जूगा RRMSD, ठीक है। बाकी तुसीं कमेंट बॉक्स के जरूर आंसर इसदा देना गा 27 जून। इस तो बाद आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड उन्होंने डांस। मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो मोहिनीअट्टम केरला, मयूरभंज उड़ीसा, गिद्धा पंजाब। सो इन्होंने आंसर दसना कितना ज़्यादा सौखा। गिद्धा तो आपको सारिਆਂ पता ही है कि भाई गिद्धा कितों का पंजाब का, यानी सी का तीजा आऊगा। सी का तीजा का मतलब की हो गया इत्थे सी का यानी इत्थे R या इत्थे PQR लिख लो, चलो PQR, ठीक है। सो R का तीजा इत्थे ही है। सो गिद्धा जेकर पंजाब का तो फिर वैसे भी पता ही है मोहिनीअट्टम केरला, राइट। मयूरभंज उड़ीसा का एंड गिद्धा हो गया पंजाब का। सो यानी दा ए आंसर ही बन गया, सौखा है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया कहता जी हु वाज द ऑथर ऑफ द रिलीजन ऑफ मैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, S राधा कृष्णन एंड अरबिंदो घोष। सो रिलीजन ऑफ मैन के ऑथर कौन है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर,
ठीक हो गया। इस तो बाद आ गया भाई क्वेश्चन अगला किन्ना 134वां, वैसटर्न घाट कहता किहड़ी टाइप की वैजीटेशन उत्थे पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। मैंग्रूव है, ट्रॉपिकल है, डेसीडुअस आ, हिल फॉरेस्ट। अपने वैसे भी ट्रॉपिकल तो सब ट्रॉपिकल पाई जाती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी कह सकते एक तरीके के नाल, जिहड़ा इहदा विंड वर्ड वाला पासा, बस तुसीं ट्रॉपिकल याद रखो, ठीक है। सो वैसटर्न घाट जिहड़ा हैगा तो ट्रॉपिकल टाइप की वैजीटेशन पाई जाती है, सो याद रखना ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। सो ये आंसर इहदा बी बन गया। आई थिंक तुहाडा आंसर राइट होना चाहिए है। अगला क्वेश्चन 135वां कहता जी मंजार फेयर है जिहड़ा वो इंपॉर्टेंट है, सैलीब्रेट किया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। ये मंजार का मतलब की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली गल तो मंजार मेला याद रखो, ये मंजार मेला जिहड़ा हैगा चंबा दे विच लगदा है। एंड चंबा दे विच क्यों लगदा, क्योंकि जिहड़ा राजा ऑफ चंबा सी, राजा ऑफ चंबा ने विक्ट्री की सी काहदे ते भला, कांगड़ा ते, त्रिगर्ता कहते इहनूं कांगड़ा नूं, त्रिगर्ता, राइट। सो त्रिगता, सो कांगड़ा ते बेसिकली विक्ट्री की सी, उस विक्ट्री नूं सैलीब्रेट करते हुए ये मेला लगदा है जिहड़ा कि मंजार मेला। तो यह वैजीटेशन के नाल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंजार का मतलब है मेज़ फ्लावर्स, राइट, मेज़ फ्लावर्स। सो याद रखना कि मंजार मेज़ फ्लावर्स जी कल्टीवेशन होंदी है, सो इंपॉर्टेंट है भाई। सो सैलीब्रेट किया जाता एक तरीके के नाल। सो राजा ऑफ चंबा ने कांगड़ा नूं जित्तिया सी बेसिकली, सो मंजार मेला उन्होंने खुशी च लगता है, सो ये याद रखना। नैक्सट आ गया 136वां क्वेश्चन, कहता विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सो भाई दसो किहड़ा आर्टिकल है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के नाल रिलेटेड, 262, 260, 275 तो 272। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दस दो भाई, ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ आ जाऊगा वह की आ जाऊगा 262, 262। ਇਹਨੂੰ एज इट इज़ याद रख लो, क्योंकि हो सकता ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ एज इट इज़ ही क्वेश्चन आ जाए, बट वार वार रिपीट जरूर कर लो, जिवें मैं कहना हुन्ना कि हर क्वेश्चन रिपीट जरूर करना है। हु इज़ द करंट एशियन क्रिकेट कौंसल प्रेजिडेंट। सो पंकज खिमजी, अमिताभ चौधरी, जे शाह ਜਾਂ एहसान मनी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जेकर तुसी जानते हो अमित शाह नूं, तो अमित शाह का मुंडा, राइट। सो करंट एशियन क्रिकेट कौंसल का जो प्रेजिडेंट है भाई वो कौन है, जे शाह। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जे शाह, क्योंकि इन्हों का जो टाइम पीरियड है बेसिकली उन्होंने 1 साल वास्ते होर एक्सटेंड कर दिता गया, 1 ईयर वास्ते होर एक्सटेंड कर दिता गया। सो पूछा जा सकता भी हाल ही दे विच किहड़े प्रेजिडेंट या एशियन क्रिकेट कौंसल के किहड़े प्रेजिडेंट का 1 साल वास्ते एक्सटेंड किया गया टाइम पीरियड। सो जे शाह, ये याद रख लो। बाकी एशियन क्रिकेट कौंसल का हैडकुआटर जरूर याद रखियो, एशियन क्रिकेट कौंसल का हैडकुआटर कित्थे है भला, कोलंबो, कोलंबो यानी कि श्रीलंका, कोलंबो के यानी कि श्रीलंका। एंड ये जिहड़े चेयरमैन है वो कौन है भाई, अमिताभ चौधरी, आ पे अमिताभ चौधरी। सो ये याद रख लो। करंट एशियन क्रिकेट कौंसल के प्रेजिडेंट कौन है, वो थोड़ा मैं दसता, जे शाह। चेयरमैन भी याद रख सकते हो, अमिताभ चौधरी, चेयरमैन कह लो या चीफ चेयरमैन जो भी कहते हैं, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैंबर ऑफ द न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप। सो बेसिकली न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप के आई थिंक 48 कंट्री आते, शायद मे भी 48 या 49 कंट्री आते हैं। हुण तुसीं 48 की 48 49 के 49 तो याद रख नहीं सकते, बट एक क्वेश्चन एज इट इज़ ही रिपीट हो जाता। एक होर क्वेश्चन आता होंदा वो मैं तो दोनों दस देना, जे पेपर के आ गया अपना तुक्का भिड़ गया तो अपना आंसर लग जू, गल खत्म है। 48 49 कंट्री पढ़न का कोई तुक नहीं बनता भी वो 49 के 49 कंट्री पढ़ ले तो फिर आपको लगे भी पेपर के याद रख के जावांगे। उदों वधिया होर बहुत कुछ याद करने पिया, वो वधिया वधिया चीज़ां याद कर लो, बस एक क्वेश्चन एज इट इज़ पढ़ जो आ गया तो अपनी किस्मत है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए मैंबर ऑफ द न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप, फ्रांस, रशिया, USA या फिर ईरान। सो ਇਹਦਾ तो आंसर ईरान आई थिंक तुसीं सारिਆਂ ने दसता होगा। पहली गल तो NSG बारे गल कर लो कि NSG बेसिकली ਇਹਦੀ फाउंडेशन ईयर की है 1974, 1974 के फाउंडेशन हुई है ਇਹਦੀ। तो ईरान ਇਹਦਾ आंसर है। एक क्वेश्चन होर आया होया जो पेपरों के कई बार रिपीट हो जाए कि इन्हों के विचों तो ऑप्शन वो होर दिते होया, बट वो आंसर है जी इजराइल, इजराइल, यानी इजराइल भी ऑप्शन के जेकर आ जाए तो वह भी NSG का मैंबर नहीं है। इजराइल, ईरान दोनों नाम याद रखियो, जे पेपर के आ गया तो आंसर ला सकते हो, राइट। सो यह भी भाई इंपॉर्टेंट बनता है, समझ लग गई, ठीक है ना। चलो नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी 139, कहता जी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वाज लॉन्च इन विच ईयर। ये थोड़ा जहा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन जा सकता, मैं दसूँगा पर तुम आंसर पहला लाओ।
2017 2015 2016 ਜਾਂ ਫਿਰ 2010 ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किहड़े साल कहंदा लॉन्च होया। हुण मैं तुहानूं आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दे सकदे हो। उदों पहलां मैं दस दिना कि इस तो पहलां बेसिकली यह ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल सीगे। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स सीगे, यानी इहदा नाम। पहली गल तो एक तो मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नहीं लिखिया होया क्योंकि यह 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ आया। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ आया। सब तो पहला जेकर आप ई वेस्ट ते लॉज की गल करिए तो इंडिया दे विच भी जिहड़ा ई वेस्ट अपना वो कदों तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये टर्म कदों तो एग्जिस्ट कर रही है 2011 तो। यानी ई वेस्ट मैनेजमेंट या ई वेस्ट ते जिहड़े अपने लॉ वगैरह बने हुए 2011 तो बने हुए। पहली गल तो 2011 इहदा आंसर आना चाहिए सी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पर इत्थे हैंडलिंग नहीं दिता होया क्योंकि इनू इंप्रूव किया गया, इनू दोबारा तो रिफॉर्म किया गया, तो उदों इहदा नाम जिहड़ा रखा गया फिर वो रखा गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। एंड वो दोबारा कदों आया 2016, राइट। 2016 दे विच वो लॉन्च होया एंड 2017 दे विच उहनूं लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, बट इत्थे ना तो हैंडलिंग लिखिया तो ना ही अपन 2011 ऑप्शन दे विच दिता। सो ਇਹਦਾ मतलब सीधा सीधा यह है कि यह ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2016 बारे ही पूछना चाहता क्योंकि 2016 ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ भी पिया, राइट। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वाज लॉन्च्ड इन 2016। ਇਹਦਾ यानी कि आंसर ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ सी आंसर आ जाऊगा। सो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सी, राइट है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ कह लो भी लॉन्च किया गया, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ लागू किया गया, ਤਾਂ सब तो पहला इंडिया ਦਾ फस्ट ई वेस्ट क्लीनिक कित्थे बनिया। ई वेस्ट क्लीनिक कित्थे बनिया, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया दे विच फस्ट ई वेस्ट क्लीनिक कित्थे बनिया, कमेंट बॉक्स दे विच जल्दी जल्दी जेकर आंसर आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो फिर नोट कर लो भोपाल मध्य प्रदेश दे विच सब तो पहला ई वेस्ट यानी क्लीनिक आ जिहड़ा अपना बनिया भोपाल मध्य प्रदेश दे विच बनिया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आ जे तो 2011, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ जे तो 2016। हालांकि हुण तक अपडेट आ रहा आ हुणी 12-13 नवंबर नूं जिहड़ा कि अपडेट किया गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। इस करके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। इस तो बाद आ गया द बुक वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर वाज ऑथर्ड बाय। सो वॉर एंड डिप्लोमेसी तो फिल्म भी आई थिंक। सो यह कश्मीर जो यानी कि ये बुक आ जी कि द्वारा लिखी गई है। सो सी दास गुप्ता, खुशवंत सिंह, अनवर सिंह या आर के नारायणम। सो सी दास गुप्ता यदा राइट आंसर बन जाऊगा। एनू एज इट इज़ ही याद रख लो बस, वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर, राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया जी 141वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के आंसर होना चाहिए। सौखा क्वेश्चन। प्रेजेंट कहता ऑफिशियली अपने किन्ने क्लासिकल डांस है, 8 है, 9 है, 10 है, 7 है। जल्दी जल्दी काफ़ी जने कमेंट बॉक्स के आई थिंक मैनू लगता भी 8 लिखणगे क्योंकि आम तौर पर किताबों के आम तौर पर आसे पासे 8 ही दिखाया गया, पर हुण 9 हो गए, एक होर नवा अपडेट हो चुका है। सो प्रेजेंट जेकर देखा जाए तो क्लासिकल डांस अपने किन्ने आ जी 9 ने। सो याद रखने किहड़े किहड़े आ, थोड़ा जिहा तो याद आप रख ही सकते हैं, सारे ही रख लो तो बड़ा वधिया। तो भारत नत्यम कित्थों का भला, जल्दी जल्दी दसो, तमिलनाडु, राइट। भारत नत्यम तमिलनाडु। इस तरीके दे नाल कथकली हो गया, नाल तुसीं याद रख सकते हो कूचीपुड़ी, ठीक है। कथकली हो गया, कूचीपुड़ी हो गया। सो ये कित्थों दे भाई, कथकली हैगा केरला का, राइट। तो कूचीपुड़ी कित्थों दा, आंध्रा प्रदेश। कूचीपुड़ी कित्थों दा, आंध्रा प्रदेश, ठीक है। भारत नत्यम हो गया, कूचीपुड़ी हो गया, कथकली हो गया। कथकली तो कथक भी है क्लासिकल डांस। ये कथक अपने नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड। हालांकि इसका जोड़ा ओरिजिन मन्निया जाता यूपी मन्निया जाता है, उत्तर प्रदेश। कई बार ऑप्शन में आ जाता तो उत्तर प्रदेश आंसर तुम ला सकते हो, नहीं नॉर्थ साइड ही कह लो। सो कथकली कूचीपुड़ी, कूचीपुड़ी तो आंध्रा प्रदेश आ, कथकली केरला हो गया, कथक तो नॉर्थ यूपी हो गया, भारत नत्यम तमिलनाडु हो गया। जो कि स्टेट के नाम तो ही आ, किहड़े किहड़े आ, उड़ीसी ये आपदे उड़ीसा नाम तो ही बेसिकली हो गया। मणिपुरी ये मणिपुर के नाम तो हो गया। सो ये याद रख सकते हो। होर आप हुणी करके हटे पिछे जे क्वेश्चन, मोहनीअट्टम, ठीक है। मोहनीअट्टम कित्थों आ, ये भी केरला,
ठीक है। केरला इको स्टेट तो 2 क्लासिकल डांस ये भी पूछ लिया जाता। सो मोहिनीअट्टम ते कथकली, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता भी ऐसी किहड़ी स्टेट आ जिथों 2 क्लासिकल डांस आ, मोहिनीअट्टम ते कथकली केरला। सो ये भी याद रख लो भाई, राइट। इस तो बाद आ गया जिहड़ा सत्रिया, सत्रिया सत्रिया ये असम है भाई, सत्रिया असम है, याद रख लो सत्रिया असम, ठीक है। जो हुण ये किन्ने हो गए, 8 हो गए, एक मिनट, एक भारत नृत्यम हो गया, उड़ीसी 2, मणिपुर 3, कथकली 4, कुचिपुड़ी 5, कथक 6, मोहिनीअट्टम 7 ते सत्रिया असम 8। लास्ट जो रह गया जो लेटेस्ट है वो कहने भाई चाऊ, छाऊ या चाऊ कह लो, ठीक है, छाऊ वैसे CHHAU, राइट। यह ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यह ईस्टर्न साइड है बस, ठीक है। सो याद रख लो छाऊ। ये 9वां क्लासिकल डांस जो अपनी मिनिस्ट्री है जी कल्चरल मिनिस्ट्री है उन्होंने द्वारा इसनों क्लासिकल डांस का दर्जा दे दिता गया। सो जेकर पूछ लिया जाए कि एट प्रेजेंट किन्ने क्लासिकल डांस है, 9 है, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, कहता जी द चेयरमैनशिप या प्रेजिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मैंबरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यानी जो चेयरमैनशिप है या प्रेजिडेंसी UN सिक्योरिटी काउंसिल की गल कर रहे हो किन्ने टाइम बाद रोटेट है, राइट। सो एवरी 6 महीने बाद, एवरी 3 महीने बाद, एवरी ईयर या फिर एवरी मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता होगा आई थिंक ये आंसर, एवरी मंथ, तो हर मंथ, ठीक है, एवरी मंथ चेयरमैनशिप एंड प्रेजिडेंसी ऑफ द UN काउंसिल रोटेट्स, ठीक है। सो याद रखना भाई एवरी मंथ, हो गया। नैक्सट क्वेश्चन का आंसर तुम जल्दी जल्दी दो 143 का, कि भाई IAEA जिन्हों आप कहने जी इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट IAEA, राइट। ये फाउंडेशन ईयर याद रख सकते हो, डेट भी इंपॉर्टेंट है याद रखनी, 29 जुलाई 1957, 29 जुलाई 1957, यानी IAEA यानी इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी। सो भाई ये फाउंडेशन हुई है। हैडकुआटर इहदा वियना, लंडन, जनेवा, वाशिंगटन। जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हो, वियना यानी ऑस्ट्रिया, वियना यानी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी देना भाई, कहता हु अमंग द फॉलोइंग फाइटर्स अपोजिज द एनी बेसेंट्स आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट। देखो फ्रीडम फाइटर तो भी क्वेश्चन आ गया, इस तो पहला भी आ गया सीगा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन ਨਾਲ। सो कहता इन्हों के किहड़ा फ्रीडम फाइटर है जिन्हें अपोज किया जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग चलाई सी 1916 के विच। तुहानूं पता कि होम रूल लीग 2 जणिਆਂ ने चलाई सी, एक तो एनी बेसेंट सी, एक कौन सीगा बाल गंगाधर तिलक, राइट, बाल गंगाधर तिलक। सो बेसिकली BG तिलक या जो एनी बेसेंट सी इन्हां द्वारा चलाई गई सी, ठीक है। सो उन्होंने अपोज किहने कीता सी, इन्हां दे विचों GK गोखले, महात्मा गांधी, BG तिलक या अरबिंदो घोष। यदा आंसर जो आजूगा जी वो आजूगा GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जोड़े कि पोलीटिकल गुरु से महात्मा गांधी दे। सो इन्होंने अपोज किया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1916 होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट। एंड याद रखियो कि पहली बार कोई फीमेल INC की प्रेजिडेंट बनी सी, पहली बार कोई फीमेल INC की प्रेजिडेंट बनी सी, वो कदों बनी सी 1917। एंड वो कौन बनी सी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट पहली फीमेल जो INC की प्रेजिडेंट बनी सी, पहली फीमेल। जे पहली इंडियन फीमेल की गल कर ली जाए कि पहली इंडियन फीमेल कौन सी, क्योंकि पहली फीमेल का मतलब तो कितों की भी हो सकती है, पर पहली इंडियन फीमेल जो INC की प्रेजिडेंट बनी है वो कौन बनी है जी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। सो ये भी तुम याद रख सकते हो, सरोजनी नायडू, ठीक है। 1917 एनी बेसेंट फीमेल, पहली फीमेल INC की, जे पहली इंडियन पूछ लिया जाए तो सरोजनी नायडू। सो याद रखियो भाई। सो होम रूल जी मूवमेंट है वो इन्होंने चलाई सी। बाकी एनी बेसेंट के नाल एक यूनीवर्सिटी याद रखनी है जिन्होंने आप कहने जी CHC यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये कित्थे अपना बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस 1898 के विच एनी बेसेंट ने बनाया, ठीक है। सो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस 1898 के विच एनी बेसेंट ने बनाया। CHC जिन्होंने आप कहने होर याद रख सकते हो 1898 तो 1893 भी याद रख ही लो कि 1893 के विच एनी बेसेंट इंडिया आई सी। एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था भी कदों इंडिया एनी बेसेंट ने एंट्री मारी है, 1893 के विच, राइट है, ओके भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच ईयर लाला लाजपत राय वाज डिपोर्टेड टू मंडाले फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब। सो लाला लाजपत राय ਨੂੰ डिपोर्ट करता मंडाले क्यों किया, क्योंकि एग्रेरियन मूवमेंट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਸੀ। सो ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ डिपोर्ट ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1905, 1907, 1909 ਤੇ 1911 ਤੋਂ 1907 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 1907 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1907 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ हिस्टरी भी है, क्वेश्चन भी स्टैटिक पूछा, बहुत सोहना क्वेश्चन है। कहता भाई पहली गल तो जी कहती ट्रेन चली है, पहली ट्रेन इंडिया के कहता किन्ने डिस्टेंस चली है, 33 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, राइट। पहली ट्रेन चली कदों 1853 के टाइम पर, राइट। डेट भी याद रख लो, 16 अप्रैल 1853 चली सी, 16 अप्रैल 1853 चली सी। कित्थों चली सी? मुंबई टू थाने, बंबे टू थाने, बंबे टू थाने, राइट। उस टाइम तो कौन सीगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी सीगा भाई। सो ये याद रख लो, लॉर्ड डलहौजी सी, राइट। मुंबई टू थाने 1853 16 अप्रैल। एंड वो डिस्टेंस जी चली सी भाई, वो कितनी सी? 34 किलोमीटर। कितना सी वो? 34 किलोमीटर। ये भी याद रख लो, आ डेट भी याद रख लो, अजकल ये भी पूछ लिया जाता है, 16 अप्रैल, ठीक है। 1853 34 किलोमीटर वो दूरी सी। आई थिंक तो कमेंट बॉक्स के आंसर सही आया होगा, राइट है भाई। नैक्सट क्वेश्चन, which article of the constitution declares that the council of ministers is collectively responsible to state legislative assembly। इत्थे ऑप्शन मान लो, मैं थोड़ा जिहा ना इत्थे ऑप्शन सही कर देना, आई थिंक काफ़ी जाने फिर आंसर सही दे देंगे। जल्दी जल्दी मान लो मैं इत्थे लिखदा आर्टिकल 75, मान लो मैं इत्थे लिखदा आर्टिकल 75, मान लो मैं इत्थे लिखदा आर्टिकल 75, एक मिनट लिखदा, इनू आप हटा दें, इत्थे लिखता मैं आर्टिकल 75, ठीक है। सो दसो इसका आंसर की आऊगा कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स भी कौंसल ऑफ मिनिस्टर जो कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल होंगे स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली। सो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। देखो आर्टिकल 75 है ना, जो लोक सभा रिस्पोंसिबल है, यानी जो कौंसल ऑफ मिनिस्टर लोक सभा तो लोक सभा का मतलब यानी जो सेंटर के अपनी लैजिस्लेटिव असैंबली है, पर इतने अपन स्टेट पूछा, इस करके भी 75 लिखता, राइट। सो भुलेखा नहीं खाना, जेकर पेपर के भी 75 आ जाए, काफ़ी जाने 99% 75 आंसर ला के आउणगे, पर यदा आंसर 164 है, क्योंकि अपन स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली पूछा, यानी कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी जी हैगी कौंसल ऑफ मिनिस्टर की स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली में, यह आर्टिकल 164 के पर जो सेंटर यानी लैजिस्लेटिव असैंबली आ जाए, स्टेट ना आए, तो फिर आर्टिकल 75 आंसर ला सकते हो। इस तो बाद आ गया द इंटर स्टेट कौंसल जी एस्टैबलिश हुई है 1990 के, वो किहदी रैकमेंडेशन पर हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर स्टेट जो कौंसल है बेसिकली वो भाई 1990 के फाउंडेशन हुई है, यानी किहदी रैकमेंडेशन के नाल हुई है? किहड़े कमिशन सीगा वो? मुखर्जी कमिशन सी, सरकारिया कमिशन सी, मंडल कमिशन सी, या फिर खो सलाह कमिशन सी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के आंसर होना चाहिए। अगर आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो याद रख लो सरकारिया कमिशन। सो सरकारिया कमिशन करके आ, यानी ये रिकमेंडेशन से जोड़ा आया इंटर स्टेट कौंसल। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमिशन। एंड ईयर जरूर याद रख लिया करो, किहड़ा ईयर सी? 1990, राइट जी। इस तो बाद आ गया कहता रिसेंटली महाराष्ट्र कैबिनेट हैज़ औरंगाबाद रीनेम्ड औरंगाबाद आफ्टर होम। सो महाराष्ट्र की सरकार तुहानूं पता औरंगाबाद का नाम चेंज होयागा, छत्रपति शिवाजी महाराज, अनमोल राम सिंह कोले, या फिर उस तो बाद सकूबाई, ठीक है। तो इस तो बाद आ गया छत्रपति महाराज यानी सांबा जी महाराज। सो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में देना भाई। सो आई थिंक सारे का ही आंसर राइट होगा। सो छत्रपति सांबा जी महाराज, सो औरंगाबाद का नाम चेंज होया, ठीक है। सो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए तो कहता विद विच कंट्री इंडिया ने रिसेंटली कहता एक साइन मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होयागा हाई इंपैक्ट कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोजैक्ट विद फाइनैंशियल एंड टैक्नीकल असिस्टेंस। बेसिकली हैल्थ नूं लैके टूरिज्म नूं लैके कि जो अपना हैल्थ है उन्होंने आप हैल्थ दोनों कंट्री का वधिया करांगे, जो अपना हैगे फैसिलिटीज़ वगैरह टूरिज्म नूं लैके आप प्रमोट करांगे।
ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ईरान है, टर्की है, ग्रीस है, अर्मीनिया। सो याद रखियो भाई, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्मीनिया ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ बढ़ावा ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ ਕਰੇਗੀ, ठीक है जे, यानी कि रेगुलर होगी बस, ठीक है। सो याद रखना गा। तो जेकर मैं तुहानू ये पूछा कि तुहाडे किन्ने क्वेश्चन राइट ने, तो नाल दी नाल एक होर चीज़ कि MSME ते जिहड़ा थीम है 2022 का, वो कमेंट बॉक्स दे विच आंसर तुसीं जरूर दे के जाना, RRMSD, राइट है, याद रखना गा। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स दे विच आंसर दस्सिओ। तो अगले क्वेश्चन आपां करांगे अगले सैशन दे विच। जेकर इहदी PDF लेना चाहुंदे हो तो बैच कोड भरो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, प्रोफाइल ते जाओ, बैचिज ते जाओ, फिर उस तो बाद भाई बैच कोड भरो, YouTube PDFs, तुसीं एक ग्रुप दे विच ऐड हो जाओगे। तो बाकी वधिया वधिया कोर्सिस तुहाडे वास्ते हैगे आ, PSSB टेस्ट सीरीज़, ऑल सबजैक्ट, इंग्लिश, मैथ, जो भी तुसीं पढ़ना चाहुंदे यानी तुहानूं एप्लीकेशन दे विच अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल नूं सबसक्राइब करो, वध तों वध शेयर करो, तो आपां होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलदे रहांगे इसे तरीके दे नाल। बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला च रहो। थैंक यू सो मच।